Okay, now we will talk about the PYQs of the EOQ. EOQ पे जो questions आए हुए from last 2 years, let's do that. This is a question which came in 2024. A publishing house purchased 9,000, 9,000 units of a particular item every year at a unit cost of rupees 20. The ordering cost per order is rupees 40 and the storage cost is 10% of the value of the average inventory. Using calculus, find the optimal order quantity and the minimum total cost. Would you like to accept an offer by the supplier who proposes to allow a discount of 10% on an order size of 1,000 units? The same type of question we have done in the previous session. It's the same sort of, and again, we need the same thing. Annual demand cost, annual ordering cost, and annual holding cost, or the annual storage cost, or we can say annual carrying cost, maybe any of the things. By calculating it, we will be able to calculate the adding 3 of that. We will come to know the total inventory cost. Now, let's start with the demand. Annual demand is given 9,000 units. That is an annual demand. And we know, again, one more thing we have to say, EOQ, the same thing, equals to Q. वो तो हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि पूछा ही वही है. We would like to say the offer ऑर्डर क्वांटिटी पूछिए, मिनिमम कॉस्ट पूछिए. अच्छा, एडी आपको गिवन है. हमने एनुअल डिमांड हमारी इतनी निकल गई 9,000 यूनिट्स है जो पर ईयर गिवन है, एनुअल डिमांड है. तो हमारी एनुअल डिमांड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9,000 यूनिट्स इंटू एक आइटम की कॉस्ट कितनी रुपीज गिवन है? 20 रुपीज गिवन है, इंटू 20, 1,80,000 would be your rupees 1,80,000 is your annual demand cost. Now we need annual demand ordering cost. Ordering cost कितनी है? Order cost पर हमें मालूम है 40 रुपीज बता रहा है ये, और हमें मालूम है हमारे टोटल 9,000 यूनिट्स चाहिए, और एक बारी के कितने यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं? क्यू. तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 9,000 अपॉन क्यू, and we will multiply by the cost per order, which is the 40. Comes out to be 36. 3,60,000 divided by Q. Right? That would be AOC. Annual holding cost would be, तो होल्ड करने में कितनी चाहिए? हमें अभी बताया आपको, कैरी करने के लिए हमारे को उसमें गिवन है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री. 10% किसका है? हमारा जो एक यूनिट कॉस्ट कितनी रुपीज थी? 20. तो 20, और कितना हमारा इन्वेंट्री कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री इज Q अपॉन 2. ये मैंने क्या निकाला है? दिस इज माय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? कितनी गिवन है परसेंटेज में? हमने सॉल्व कर लिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, सेम पैटर्न, नथिंग न्यू. ये तो Q रह गया, सब कट गया. देन वी कम आउट विद द टोटल कॉस्ट. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वुड बी द सम of 3 types of the cost. It would be 1,80,000 plus 1,60,000 upon Q plus Q. You got an equation. Now to check what would be your quantity, differentiate the equation, you will get this would be 0 with respect to R to Q. It would be minus 360. It would be 3,60,000 and it will be Q2 plus 1. This is your differentiation. And next step is to calculate the value of Q. It would be, keep it 0. And when you will calculate, you will get 600. 600 will come to be Q. Quantity आपकी Q निकल के आ गई. EOQ. अब EOQ है या नहीं, ये वाला मेरा मिनिमम है या नहीं, मतलब EOQ है या नहीं. इस वाले अगर मैंने कितने ऑर्डर कर दिए यूनिट्स एक ऑर्डर में, क्या ये मेरे को कॉस्ट को मिनिमाइज कर देगा? ट्रेड ऑफ हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी चेक, वी डबल डिफरेंशिएटेड.
इसको डबल डिफरेंशिएट किया, वी गेट माइनस का यहाँ प्लस हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 72 इन 7,20,000 on Q3. Now this is more than 0 when Q is 600. So we can say cost is, therefore, cost is minimum, क्योंकि मोर देन 0 है तो ये मिनिमम हो गया. कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन Q इज इक्वल्स टू 600. सिंपल. ये स्टेटमेंट हमारा हो गया. हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया तो ये हमारा EOQ हो गया. हेंस EOQ इज 600. दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. सेकंड से मिनिमम कॉस्ट. अब मिनिमम कॉस्ट होगी, मिनिमम कॉस्ट हम कह रहे हैं 600 पे चेक करनी है. हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे Q की जगह. क्वेश्चंस वुड बी 1,80,000 प्लस 360000 upon 600 plus 600. The value come out to be 181,200 rupees. This is the minimum cost which we will get it. Now, अब हमारे पास next part कह रहे हैं, would you like to accept an offer by the supplier, है ना, who proposes a lot discount of 10% on the order size of the 1,000 units. अगर 1,000 यूनिट्स आपको ऑर्डर करोगे तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ये बात कह रहा है. मीन्स हम सप्लायर ऑफर पे स्टडी कर लेते हैं. सप्लायर ऑफर, सप्लायर ऑफर क्या है मेरा? डिस्काउंट ऑफ 10%. कब दे रहा है? जब ऑर्डर साइज, ऑन ऑर्डर साइज ऑफ 1,000 यूनिट्स. अगर मैंने 1,000 यूनिट्स ऑर्डर करी तो कह रहा है 10% डिस्काउंट कर दूंगा. अभी हम कितना ऑर्डर करना चाह रहे हैं मिनिमम पे? हमारे हिसाब से 600 करोगे तब फायदा है. बट ये कह रहा है कि अगर आप 1,000 करोगे आपको 10% दे दूंगा. सब बिग नंबर 10%. तो लेट्स सी हमारा क्या सीन चलता है. अब इसके अंदर हम पहले एनुअल डिमांड कॉस्ट ही देख लो कितनी बन जाएगी हमारी. हमें मालूम है हमारी डिमांड कॉस्ट 9,000 थी. 9,000, 9,000 यूनिट्स. अब हमारा ये कितना हो गया? 20% है ना. 20% था, ओ 20 था रुपीज. अब इसका हमें 10% डिस्काउंट देना है. 10% डिस्काउंट देना है मीन्स 20 था, उस पे हमने 10% डिस्काउंट दिया. मीन्स 2 रुपीज का हमें डिस्काउंट देना है. डिस्काउंट कितना देना है? 2 रुपीज का. तो हमारे को अभी कितना था? पहले 20 था, -2 तो 18 रुपीज का हो गया. इंटू 18 सॉल्व कर लो. उसका आ गया 162. ठीक है. हमारे को एनु कर दोगे. अब इसी तरीके से आप AOC निकाल लो. ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? हमें मालूम है 9,000 यूनिट थी अपॉन Q. Q इसके अंदर 1,000 है ना. हम तो Q मान के 1,000 मान के चल रहे हैं. ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कितने का ऑर्डर का था हमारा? पहले ऑर्डर 40 का था. हमारा 40 का रहा. ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं कह रहा ये. तो हमारा आ गया, सॉल्व करोगे तो 360. ठीक है. 360 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई. एनुअल मेरा कैरिंग कॉस्ट बोल दूं या होल्डिंग कॉस्ट? इसमें क्या ऑप्टिमल ऑर्डर का 10% वैल्यू ऑफ द स्टोरेज कॉस्ट बोल रखा है. तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट जो भी है वो कह रहे 10% थी. 10% आपकी टोटल कॉस्ट कितनी? अब तो 18 हो गई थी. पहले 20 थी तो हमने 20 लिया था, अब 10 हो गई है तो 10% हमारे को 18 पे हुआ. और हमारा Q अपॉन 2, Q कितना है? 1,000 अपॉन 2. सॉल्व कर लो इसको. आपका 900 आ गया. इसमें टोटल कॉस्ट जब ये 1,000 है, हमने क्वांटिटी 1,000 लिया, 1,620 प्लस 360 प्लस 900 comes out to be 1,363,260. ठीक है. ये मेरी कॉस्ट कब निकल के आई है? जब मैंने 1,000 लिया है. ठीक है जी. और हमारी इतनी 1,800 बनाई थी. अब क्लियर हो रहा है. सिंस TC एट 1,000, जब हमारा Q 1,000 है, इज लेस देन TC जब हमारा 600 है. लेस है
ये 16320 है, ये 18120 है। ये आपने कंपेयर करोगे ना इसको और इसको, आपने कभी एक एक कम है, therefore we should accept the order. In the exam, please don't forget to write the statements. ठीक है, बस आपको यही पूछा था। डिस्काउंट अगर 10% का दे रहे हैं तो क्या है, डन। क्लियर, ये 2024 का क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें कह रहे हैं अ फैक्ट्री फॉलोज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम फॉर मेंटेनिंग स्टॉक्स ऑफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स। द एनुअल डिमांड इज फॉर 12960 units and the cost of placing an order is rupees 50 and the component cost is rupees 100 per unit. The factory has imputed 10% as an inventory carrying rate. We are required to determine the following: economic order quantity, using calculus, total cost of the EOQ, optimal number of orders, optimal intervals of placing an order, assuming a year to be equivalent to 360 days, the discount rate that the supplier should offer to ensure that the purchase of 6480 units is equally attractive as a purchase of EOQ. See, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, इज एन इजीएस्ट वन, बिल्कुल जो जैसे पहले कर रहे थे सेम थिंग वी विल डू। हमें कुछ नया नहीं करना, हम पहले सबसे इसके अंदर ईओक्यू मान लेंगे। लेट EOQ BQ, नाउ सॉल्व फ्रॉम इट। आप एनुअल डिमांड कितनी है, कंपोनेंट एनुअल डिमांड इज इतने यूनिट्स, 12960 इज योर एनुअल डिमांड, है ना। और ये हमें मालूम है कंपोनेंट की कॉस्ट, हर एक कंपोनेंट की 100 रुपीज की कॉस्ट है, तो हमारा एडीसी निकल जाएगा 2960 इंटू 100, 12960, तो हमारा आ गया 12,96,000। ठीक है, इतनी कॉस्ट आ गई है हमारी। अब हमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। ऑर्डर करने के लिए हमें पता ही है कि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 12960 हमारे टोटल यूनिट्स चाहिए, और हमने एक ऑर्डर में करते हैं क्यू, तो कितने ऑर्डर्स हुए, 12960 इंटू 50 गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50 से मल्टीप्लाई कर लिया, इट वुड बी 648000 डिवाइडेड बाय क्यू, राइट। हमारा एओसी भी निकाल लिया। अब हमारी कैरिंग कॉस्ट बोल दो या होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, वो बोल रहा है कैरिंग कॉस्ट हमारी रेट गिवन है 10%। 10% कितने पे, 100 रुपीज का था हमारी एक यूनिट का, और इसका इन्वेंट्री तो हाफ है ही, एवरेज निकाली है। सॉल्व कर लिया तो 5 क्यों आ गया, यहां तक आ गया। अब आपको टोटल कॉस्ट भी इजीली निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना है, इन सबको ऐड कर लो, ये और ये सबको ऐड, सारी ऐड कर लो टोटल कॉस्ट, हमारा आ गया 12,96,000 प्लस इन अपॉन क्यू प्लस 5Q। ठीक है, हमने इसको ऐड कर लिया सब, हमारा DTC अपॉन DQ, ये ऑर्डर आ गया, ये मेरा आ गया -6488, 3 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 5। दिस इज माय डिफरेंशिएशन। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियसली करे हुए हैं। कीपिंग इट जीरो, सब समझा चुकी हूँ, आई एम से सॉल्विंग इट फॉर यू सो दैट बिकम इजी। हमने जीरो के पुट करा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, इसको हमने जीरो किया, हमारी आ जाएगी वैल्यू 360। हाँ, अब मुझे ये चेक करना है मेरा 360 मेरा ईओक्यू है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, अगर इसमें मिनिमम कॉस्ट आ रही है या नहीं, उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। डबल डिफरेंशिएट किया मैंने कॉस्ट को, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट हुआ तो प्लस का हो गया,
अब इसके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 6 12 अपॉन Q3 plus 0, which is more than 0 when Q is equals to 360 डिग्री और 360, ठीक है, 360 आते ही we think this is 360 डिग्री. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर. So we can say therefore C is minimum when Q is 360. So EOQ is equals to 360 is your answer. आपका आंसर आ गया पार्ट वन. ठीक है, अब आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने निकाल दिया. सेकंड, टोटल कॉस्ट ऑफ ईओक्यू, टोटल कॉस्ट निकालनी है. टोटल कॉस्ट कितनी है, ये वाला. इसके अंदर क्यू की वैल्यू डाल दो एंड देन यू विल गेट इट. 1296000 प्लस 6480 अपॉन 360 प्लस 5 इंटू 360. राइट, सॉल्व कर लो. यू विल गेट 1299600. ये आपकी कॉस्ट आ गई है. ठीक है जी, सेकंड पार्ट आ गया. थर्ड पार्ट इज सेइंग ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं हमें मालूम है. टोटल हमने कितने ऑर्डर्स थे. ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी एनुअल डिमांड है, जितनी भी टोटल जरूरत है, डिमांड है, उतना डिवाइडेड बाय ईओक्यू. हमारे एनुअल डिमांड कितनी है, 12960 कंपोनेंट्स थे, डिवाइडेड बाय ईओक्यू हमने 360 डिग्री निकला, कम्स आउट टू बी 360. ये हमारा थर्ड आंसर आ गया. फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कह रहा है, थर्ड इज डन. फोर्थ, ऑप्टिमल इंटरवल ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर अज्यूमिंग ईयर टू बी 360 डिग्री. भाई हमें ऑप्टिमल इंटरवल कितना होना चाहिए फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, है ना. हमें ऑप्टिमल इंटरवल कितना होना चाहिए. हमें टोटल ऑर्डर चाहिए. हमें मालूम है कि हम नंबर ऑफ डेज कितने ईयर्स में, ऑफ डेज इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय कितने ऑर्डर्स हमने करे, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, उससे निकल जाएगा. हमने पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करे, अभी हमने निकाला ही ऊपर 360 डिग्री. और वो कह रहे हैं हमारे 360, एक मिनट, सॉरी ये 360 नहीं है, एक मिनट, 36, दिस वाज 36. हमारे 36 ऑर्डर्स हैं, यूनिट्स से नंबर ऑफ टाइम्स विच वी आर ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 36 करने हैं. दिस इज डिवाइड बाय 36. ये हमारे आ गया 10. हर 10 डेज बाद हमें एवरी 10 डेज, आफ्टर एवरी 10 डेज हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, सो दैट वी विल नॉट फिनिश विद द गुड्स. हमारे नहीं तो गुड्स ही नहीं रहेंगे हमारे पास. चलिए, ये फोर्थ भी हो गया. फिफ्थ कह रहा है द डिस्काउंट रेट एट विच एट द सप्लायर शुड ऑफर to ensure that the purchase of 6480 units is equally attractive as purchase of EOQ. वो कह रहे हैं कितना डिस्काउंट देते हैं और परचेज वो लोग एक साथ यूनिट्स 6480 यूनिट्स करें, है ना, कितना डिस्काउंट होना चाहिए. सिंपल, अब इसका भी देख लो. सपोज सप्लायर ऑफर डी डिस्काउंट, है ना, ऑफर D%, है ना, डिस्काउंट. इतना डिस्काउंट कितना दे रहा है, D% डिस्काउंट निकाल के कर लो, है ना, टू इंश्योर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, टू इंश्योर दैट द परचेज ऑफ, sure that the purchase of 6480 units is equally attractive as purchase of EOQ. जैसे आपकी EOQ की परचेज है उतना इक्वली ही इतना अट्रैक्टिव है. हमें D% डिस्काउंट मान के चलना है, तो बस इसके लिए आप कैलकुलेट कर लो, EDC निकाल लो. अगर मेरी EDC है 12
960 था, है ना, इंटू 100। लेकिन इस 100 पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम? डी अपॉन 100, डी परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो हमारा इसका आ गया 1296000। 29600 और 1 - D/100। ठीक है, इतना हमारा ये आ जाना चाहिए। फिर हमारा एओसी कितना है? 1296 अपॉन क्यू हमने दे रखा है 6480 कह रहा है, हमें लेके चलना है, और हमारा 50 का तो डिस्काउंट था ही, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, डिस्काउंट नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमारा 20 × 5 100 आ गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट 10% था, इंटू जितना भी हमारा डिस्काउंट लेने के बाद जो कॉस्ट क्या बन गई थी, ये बन गया था, इंटू जो क्यू अपॉन टू होता है, क्यू है अपॉन टू। सॉल्व कर लो। 32400 1 - D/100। ठीक है, अब आपने इसको टोटल कॉस्ट निकाल लो। जब हमारी 64, ये मेरे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया हुआ है क्या? देखते हैं। 6480। अब आप इसको सॉल्व इक्वल टू इसको ऐड कर लो। 12960, तो 1 - D/100 इंटू प्लस प्लस 100 प्लस 6480 अपॉन 2। आपने इसको सॉल्व कर लिया? नहीं सॉरी, एक मिनट, मेरे को टोटल करना है इसका, इसका और इसका, प्लस 324। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 1 - D/100, अंदर रह जाएगा आपका 32400 प्लस 12960 प्लस 100। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 1 - D/100, 132840 प्लस 100। सॉल्व कर लो। 1132840 माइनस 13284 D प्लस 100 इक्वल्स टू 132,850 माइनस 2,850 माइनस 4D। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब टू फाइंड डी, अब मुझे डी निकालना है, सो दैट वो इक्वली कह रहा है ना, इक्वली होना चाहिए। तो C6480 इक्वल्स टू C360, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इट शुड बी इक्वली अट्रैक्टिव, एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए। हमारे को इसके इक्वल होना चाहिए, जो कितना आया था हमारा, हमने ऊपर निकाला था ये 1299 1299600 हम निकाल चुके हैं ऊपर, इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 132,850 -132,840 टू बी इक्वल्स टू 1299600। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डी के लिए। इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। 28900 अपॉन 132,840 इक्वल्स टू 2.1755। देयरफॉर क्वेश्चन में आपसे पूछा था डिस्काउंट रेट बताना है ना, तो हमारा डिस्काउंट रेट निकल गया 2.17। सो डिस्काउंट रेट ऑफ 2.1755% shall make
the order size of 6480 units equally attractive. अगर वो 2.1755 का डिस्काउंट दे देता तो और इतने ऑर्डर्स पे तब भी वो अट्रैक्टिव ऑफर है, अदरवाइज इसमें. होप इज क्लियर. वी हैव डन द few PYQs and the example questions. I think by this time you are comfortable with EOQ. कोई भी क्वेश्चन आ जाए EOQ में, always try to calculate these three things. पहले तीन चीजें निकालो, इसके ही थ्रू सारे क्वेश्चन होंगे. अगर सप्लायर्स के बारे में पूछ रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है, देन सॉल्व इट. और जनरली दोनों जितने भी 2 साल से आ रहे हैं उसमें सप्लाई ऑफर के बारे में पूछ ही रहा है. वेदर देर आस्किंग अबाउट द डिस्काउंट रेट कितना है, या डिस्काउंट रेट दे रखा होता है और तब पूछ रहा है कि कितना उनको बेनिफिट है, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं. और दे विल गिव यू इन दिस फॉर्म. कितने भी फॉर्म में आ जाए, कितने भी पार्ट्स में आ जाए, डोंट वरी, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इजीएस्ट होता है एंड यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स, एंड इट्स ऑफ द 9 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही रहा है फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स. होप इज क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू.